Hello friends, welcome to CEC Gurukul Lectures. Dear friends, this is our session on career counseling called Pratibha Samvardhan, and today we are discussing in detail on emotional first aid. We have discussed a lot on rejections, how rejections impact our career growth. Friends, for this discussion we have with us in our studios Dr. Rishi Mishra. Dr. Rishi Mishra, I would say that he always give inputs which are benefit for you, which benefits you, which benefits us and each one of us, and helps in growing as an individual. Friends, he is a counselor, and through him we get thought-provoking inputs, I would say. So if you have any question regarding today's session, do talk to us through our toll-free number. Our number is 1800110430. Let's welcome our guest, Dr. Rishi Mishra, once again. Hello sir, welcome to the session. So as we have discussed in detail about the rejections in the previous session, now my first question is, sometimes we have preconceived notions. Right. I'll be rejected. I know I will be rejected. Is this a part of loneliness? As we have discussed that loneliness is also one of the other components of emotional first aid. So can we say that rejections has a connection with loneliness also? Yes, ma'am. So when we talk about rejection, so in our previous discussion, we discussed about a statement, rejection rejects reason. This means that when people reject something, it is not always based on a reason. It is it is something like our own emotional structure plus the reason. So it is always something else when things get rejected and when we are rejected. Now when we talk about loneliness and rejection, and we talk about loneliness only itself, when we say that what is loneliness? So loneliness is a feelings which we have acquired or we have assumed in terms of our own self and our own life and in our own career. This is the reason why when we talk about emerging careers, when we talk about what next in life, fine, then what we feel is we always want numbers. Okay, if I say this is an emerging careers, you can go for it. It is a career which talks about tech and design. You can go for it. Then first question is, okay, how many people have gone through? What is the success rate? Fine. So what this identifies first is that are we feeling that it's only me who have to go through this whole quagmire, और दूसरा ये लगता है कि बाकी लोग ये नहीं कर रहे, मुझे ही मैं ये क्यों करूं, सो आई नीड समथिंग टू फॉलो बिहाइंड. ऐसे ही जब हम बात करते हैं लोनलीनेस की इन आवर ओन लाइफ, कोई एग्जाम देने जाते हैं तो हमें लगता है कि उस एग्जाम सेंटर में कई बार एंजाइटी क्यों बढ़ती है. उस एग्जाम सेंटर में हम देखते हैं कि बाकी सब लोग जो हैं वो पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, एंड मैं आया हूँ, पता नहीं मुझे लगता है वो लोग मेरे से ज़्यादा जानते हैं. सो ऐसा आपके पूरे स्कूलिंग लाइफ में, वैसे भी लाइफ में कई बार हुआ होगा. जब आप क्लासरूम में गए, आपको क्लास में भी लगा कि सब लोग बातें कर रहे हैं उसके बारे में, एंड जब मैं वहाँ जाके बैठूंगा तो मुझे बहुत अकेलापन फील हो रहा है. एंड इसी एंजाइटी की वजह से आई केम अक्रॉस मेनी स्टूडेंट्स. उस कुछ के एग्जाम्पल जैसे मैं बताऊं कि एग्ज़ाम देने जाना है उनको, और एग्ज़ाम सेंटर में गए, एंड कैन यू से हाउ मच अमाउंट ऑफ टाइम उनको दे रिक्वायर्ड टू गेट रिलैक्स्ड. कितना टाइम लगा उनको रिलैक्स होने के लिए और एग्जाम में राइटिंग आंसर लिखने के लिए? 15 to 20 मिनट्स. सो एग्जाम सेंटर में गए, वहां पर अंदर एग्जाम डेस्क पे बैठे, उनको पेपर्स मिले, एंड देन वो लिखने लगे. वो लिखने से पहले उन्होंने पेपर देखा, एंड एंजाइटी बढ़ी, एंड देन वो वॉशरूम में गए, एंड देन मुंह हाथ उन्होंने धोए और लाइक अपने आप को पूरा संभाला उन्होंने. इतना ट्रॉमा बढ़ गया था उनका. वापस आए, एंड देन उन्होंने आंसर लिखना शुरू किया, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम उनके पेपर खराब ही जाते थे. फाइन. सो ये प्रॉब्लम जो है वो इसीलिए है कि ये नहीं है कि सिर्फ एंजाइटी है. मुझे एंजाइटी अगर मैं कोर पकड़ूं, मैं लाइक व्हाट इज द प्रॉब्लम, कहां से एंजाइटी निकल रही है, दैट कोर इज लोनलीनेस. कि हमें लगता है कि ये
पूरा मेरी जिम्मेदारी है, मेरी प्रॉब्लम है, मैं कुछ आगे नहीं कर सकता, मेरा लाइक कोई मेरे को बचाने वाला नहीं है, ये जो लोनलीनेस प्रॉब्लम है ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि जैसे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं कि सर मैथ्स में नंबर कम आ रहे हैं या इंग्लिश में नंबर कम आ रहे हैं, या इंग्लिश में तो खैर कम ही ऐसा होता है, लेकिन साइंस के सब्जेक्ट में, फिजिक्स में, मैथ्स में, केमिस्ट्री में प्रॉब्लम होती है। यूजुअली मैथ्स एक प्रॉब्लम सभी स्टूडेंट्स के लिए होती है। सो वो मेरे पास आते हैं, दे से कि सर मैथ्स में नंबर नहीं आ रहे। पेरेंट्स भी आते हैं, दे ऑल्सो आस्क लाइक कि मैथ्स के लिए इसको क्या करें, कैसे इसको कराएं। सो देन माई फर्स्ट अटैक इज ऑन द लोनलीनेस ऑफ द पीपल ओवर देयर। मैं उनको ये कहता हूं कि आप अगर स्कूल में पढ़ रहे हो तो यू आर नॉट अ सिंगल पर्सन इन स्कूल, आप एक टीम का पार्ट हो। उस टीम के अंदर आपके पेरेंट्स हैं, उस टीम के अंदर आपके टीचर्स हैं, फाइन, उस टीम के अंदर आपके कोहर्ट्स हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, आपके लाइक स्कूल के क्लासमेट्स हैं। सो ये एक टीम का पार्ट है। सो जब हम बात करते हैं ना लीडरशिप से ये बात क्यों निकलती है हमारी, जब हम लोनलीनेस की बात करते हैं। तो अगर आपने इस लोनलीनेस को हटा लिया देन यू आर लीडर। एक लोनलीनेस से लीडरशिप कन्वर्जन में यही एटीट्यूड का डिफरेंस चाहिए आपको। सो जब आप एज अ स्टूडेंट वहां जाते हो, पेरेंट्स भी कहते हैं, टीचर्स भी कहते हैं, अरे तुम पढ़ नहीं रहे हो, तुम्हारे नंबर कम आ रहे हैं, मैथ्स में कम आ रहे हैं या साइंस में नंबर कम आ रहे हैं। सो व्हाट यू आर फीलिंग इज कि नहीं मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, विच इज राइट, आप करिए, वो आप करेंगे, बट ये एक चीज आइडेंटिफाई करनी है कि आपको मेहनत करनी है एंड यू नीड द हेल्प ऑफ द टीम। आपको अपने टीचर्स की हेल्प चाहिए। सो कई बार हेल्प मिलने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़े से एफर्ट लगते हैं, बट यू नीड हेल्प, दिस यू आर अ पार्ट ऑफ दिस टीम। तो यहीं से अगर आप इसी कॉन्सेप्ट को लाइफ में यूज करते हैं देन यू विल से आगे भी आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। ठीक है, ऐसे ही कभी आपने देखा होगा स्टूडेंट्स अगर इंट्रोवर्ट है ना, और उनको अपनी लाइफ को आगे चलाना है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं इंट्रोवर्जन इज रॉन्ग, मैं ये नहीं कह रहा हूं एक्सट्रोवर्जन इज रॉन्ग, मैं ये कह रहा हूं कि यू आर इंट्रोवर्ट फॉर सर्टेन थिंग्स जिसको आप हटा नहीं सकते, लेकिन यू आर इंट्रोवर्ट फॉर सर्टेन अदर थिंग्स, उसके लिए यू लर्न द मैकेनिज्म। सो समवेयर डाउन द लाइन लाइफ में एट वन पॉइंट ऑफ टाइम पीपल बिकम एम्बीवर्ट्स, एक्सट्रीम इंट्रोवर्जन हट जाती है, बिकॉज एक बायोलॉजिकल फिनोमेना है कि अगर हमारे को किसी चीज की जरूरत नहीं है तो धीरे धीरे वो हमारा माइंडसेट, बॉडी शेप उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाती है। ऐसे ही हमारे को इस ट्रांजिशन की जरूरत होती है, एंड यही ट्रांजिशन कितनी जल्दी आपके लाइफ में होता है उतनी जल्दी यू आर लाइक गुड कनेक्टेड विद द पीपल, वर्किंग विद द टीम। अब वर्किंग विद द टीम में एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है सेल्फिशनेस का, विच इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जो कहीं बात नहीं की जाती, जो डिस्कस नहीं की जाती है। मुझे लगता है सेल्फिशनेस पे भी एक सीरीज ऑफ लाइक प्रेजेंटेशन होनी चाहिए ताकि हम उसके प्लस और माइनस आइडेंटिफाई कर पाएंगे। क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि आप सेल्फलेस बन जाइए, क्योंकि सेल्फलेस बनना इज समथिंग नॉट प्रैक्टिकल। सो आई हैव टू बी सेल्फिश इन सर्टेन पार्ट ऑफ माई लाइफ। ऐसे ही अगर आप थोड़ा सा इस सेल्फिशनेस के कंपोनेंट को बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे आपका लोनलीनेस का कंपोनेंट कम हो रहा है। एज पर द चेंजिंग सिनेरियोज यू हैव टू चेंज योर एटीट्यूड ऑल्सो इन सर्टेन एरियाज। अब सेल्फिशनेस का मतलब ये है, अगर मैं कहीं जा रहा हूं एंड मुझे यहां से और एयरपोर्ट में जाना है और मेरे पास और मैं फ्लाइट मेरी जो है डिले होने का चांसेस हैं, एंड देन जो टैक्सी वाला है देन ही इज चार्जिंग समथिंग 10 रुपीज मोर। सपोज ओला उबर नहीं है वहां पर एंड आपको टैक्सी ऐसे ही आपने हायर की है, तो वो कह रहे थे कि नहीं मेरे को इतने रुपए और चाहिए वहां जाने के लिए। फाइन, नाउ अब आप टैक्सी वाले से फोकस करेंगे या फिर आपकी जो फ्लाइट मिस होने वाली उसको फोकस करेंगे? ऑब्वियसली आप उस फ्लाइट जो मिस नहीं हो रही उसका फोकस करेंगे। सो नाउ यहां पर क्या है, आपने थोड़ा सा सेल्फिशनेस आपने यहां दिखाई। क्यों? क्योंकि यू लाइक प्लेड विद योर ओन आइडियोलॉजीज। क्योंकि अगर आपको वाकई गलत लग रहा था एक आदमी जो मेरे से ज्यादा चार्ज कर रहा है, बट वहां आपने ही अपनी आइडियोलॉजी को साइड कर दिया। इन दिस वे अगेन आई विल से दिस इज द लेवल ऑफ लाइक थिंकिंग यू शुड फोकस ऑन। अब यहां पर अगर मैंने
इस एलिमेंट को एक साथ मिला दिया तो हम देखूंगा कि लोनलीनेस इज बेसिकली माई ओन एटीट्यूड रादर देन अ प्रॉब्लम। और बहुत टाइम ऐसा होता है कि देयर आर प्लेसेस वेयर फील लोनली बट वी डोंट आइडेंटिफाई इट। So in coming period of time, I'll say there would be a specialist called as loneliness treatment therapist because they will only focus on your loneliness component. क्योंकि मैंने देखा है इसी loneliness problem से anxiety निकल के आती है। So देखिए anxiety जो है अगर एक कॉमन सी प्रॉब्लम है तो हम देखते हैं anxiety जो होती है वो स्पेसिफिक रीजंस की वजह से होती है। So उसमें anxiety का दो रीजन हो सकते हैं। If you are feeling lonely, one reason. Second reason is कि आपने उस चीज के लिए अपने आप को तैयार नहीं किया है। तो जैसे कभी एग्जाम देने जाते हैं तो हमें फिर ये लगता है कि जैसे पहले मैंने बताया था कि लोगों ने ज्यादा तैयारी की होगी। और मैं अपनी लाइफ से एक्सपेरिमेंट एक प्रैक्टिकल चीज बताता हूँ। RCI का हमारे एक लाइसेंस एग्जाम होते हैं, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के लाइसेंस एग्जाम होते हैं। सो मैं उस एग्जाम को उसको रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी का एग्जाम है तो उसको एग्जाम को मैं देने गया। तो जैसे ही मैं ऊपर चढ़ा क्लासरूम के अंदर जहां पर लोग बैठे थे और एग्जाम होने वाला था, सो वहां पर कुछ लोग थे देवर टॉकिंग, मतलब एक 6 months के 1 साल के कोर्स में 2 सेमेस्टर होते हैं, सेमेस्टर 1 एंड देन सेमेस्टर 2। सो पहले वाले सेमेस्टर जब मैं देने गया तो वहां पर लोग बहुत सारी डिस्कशन चल रही थी, बातें चल रही थी। नाउ दे वर डिस्कसिंग अबाउट द RCI एक्ट कब बना, डेट्स, एंड देन दे वर टॉकिंग अबाउट लाइक ये भी था मैच द फॉलोइंग। मुझे ये लगा, मैंने कहा क्योंकि मैं सिंस आई वाज इन अ जॉब, सो मैं जॉब के साथ साथ वो कर रहा था तो मुझे लगा कि आई थिंक बहुत सारा पोर्शन है मैंने कवर नहीं किया शायद, आई डोंट नो अबाउट दैट। सो मैंने कहा चलो बैठते हैं, फोकस करते हैं। तो वहां मेरी एंजाइटी में वो प्रॉब्लम आई। यहाँ पर प्रॉब्लम क्यों आई कि मुझे लगा कि आई थिंक आई एम हियरिंग समथिंग विच इज न्यू टू मी, मुझे वो नहीं पता है एंड आई थिंक वो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, वो आना चाहिए था और मुझे नहीं पता। सो अब यहाँ पर भी लॉनलीनेस क्यों है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि आई थिंक आई एम लेफ्ट आउट। फाइन। सो यहाँ पर भी क्या है, अब देखिए लोनलीनेस और रिजेक्शन एक साथ मिल रहे हैं। आई थिंक आई एम बीइंग लेफ्ट आउट। अगर शायद के मेरे को किसी ने इंफॉर्मेशन नहीं दी, सो दैट ग्रुप रिजेक्टेड मी, उस ग्रुप ने कहा कि नहीं उसको इंफॉर्मेशन नहीं देनी। तो यहां पर लोनलीनेस के साथ मैंने देखा कि दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट सिनेरियो देखिए, इसी एग्जाम में मुझे ये पता चला कि मैक्सिमम लोग फेल हो जाते हैं। फाइन, लाइक 50% मार्क्स एग्रीगेट सब में नहीं आ पाते। सो एंड उसके बाद अब तो काफी मैंने देखा कि काफी लोग जो है वो उस एग्जाम में फेल हुए हैं एंड देन वो फिर भी लाइक दे आर अगेन ट्राइंग टू रीअपियर इन दिस एग्जाम। तो ये इस टाइप का वो एग्जामिनेशन था। फाइन। लेकिन बाद में समझ में आया जब मैंने आगे उस कोर्स को आगे किया तो उस टाइम मुझे लग रहा था, मैंने कहा क्योंकि वो लोग क्या है दोबारा या तीसरी बार या दूसरी बार अपेयर हो रहे थे उस एग्जाम के लिए, तो वो उन लोगों ने अपने पूरे कोर्स कंटेंट को बढ़ा लिया था, मुझे ये भी पढ़ना चाहिए, वो भी पढ़ना चाहिए, वो पढ़ना चाहिए। जबकि बेसिक मैंने जो पढ़ा था मैंने सिर्फ अपने वहां पर लाइफ एक्सपीरियंसेस से जाके लिखा था, क्योंकि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन नॉट रिटेन टू मच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। सो मैंने एक्सपीरियंसेस से अपने लिखा था, देन आई स्कोर्ड गुड अराउंड 70% इन दैट वन। सो यहां पर ये फर्क था कि दैट लोनलीनेस कॉम्पोनेंट विच वॉज नॉट लाइक रीजनेबल। जैसे हम कहते हैं रिजेक्शन रिजेक्ट्स रीजन, उसी प्रकार से लोनलीनेस रिजेक्ट्स रीजन। अगर आप लोनली फील कर रहे हैं तो वो कोई भी रीजन दिया जाए तो आप कोई और देता है तो आप रिजेक्ट कर देंगे। फाइन। जैसे आप थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, आप कहते हैं कि मुझे लोनलीनेस फील हो रही है, तो थेरेपिस्ट आपसे बात करेंगे एंड दे विल ट्राई टू एक्सट्रैक्ट द रीजंस, दे विल फाइंड टू फाइंड आउट कि ये रीजन है, ये रीजन है, ये रीजन है, बट आप उसको रिजेक्ट कर देंगे। सो उसका फाइनल सोल्यूशन कभी हो सकता है देन यू रियलाइज योर ओन सेल्फ। अगर आपको ही मैं इंफॉर्मेशन दूं और आप इस पे वर्कआउट करें कि देखिए ये 2 एग्जांपल हैं लाइफ के कि लोग जिनको लोनलीनेस फील होता था या तो उनकी तैयारी कम थी, सेकेंड लोग जिनको लोनलीनेस फील होता था उनको रिजेक्शन का डर था। जैसे 2 चीजें आप कभी सुनेंगे लाइफ में, फियर ऑफ सक्सेस एंड फियर ऑफ फेलियर। फियर ऑफ फेलियर भी होता है, फियर ऑफ सक्सेस भी होता है।
इन सारे दोनों फियर्स में जो हाथ होता है वो लोनलीनेस का होता है। अगर और दूसरा लाइक यहीं से कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है कि लोनलीनेस आपको एक आपने एक कंफर्ट जोन बना रखी है, जिसकी वजह से क्या है आप लोगों से इंटरेक्ट नहीं करते हो, और रीजन ये है कि यू फील आप उनसे इंटरेक्ट करोगे देन दे विल रिजेक्ट यू समवेयर डाउन द लाइन। प्रॉब्लम इज कि इसको हमने एक कॉन्सेप्ट के अंदर बांध लिया है। उस कॉन्सेप्ट का मतलब नाम यह है कि वी हैव दिस हैबिट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन एवरी टाइम। सो अब इसकी थेरेपी क्या रहेगी? फर्स्ट इज थेरेपी इज नोइंग। जैसे हमको पता चल गया कि ये प्रॉब्लम है, इसको हम लोग डील करते हैं, इसको हमारे को भी डील करना होगा लाइफ में, और कहीं ना कहीं हम कर रहे हैं। सेकेंड जो कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि इन सारी चीजों को हम एनालाइज सेगमेंट वाइज करेंगे। अगर हम एक साथ एनालाइज करने लग जाएंगे, जनरलाइजेशन करना, ये हमारी प्रॉब्लम है। और जनरलाइजेशन का मतलब क्या है कि अगर मैं आपको एक एस बना के दे दूं और वो एस के कोई भी चीज बीच में जुड़ी हुई ना हो, एक आधा पार्ट हो, फिर सेमी सर्कल हो, फिर कटा हुआ, सो मैं क्या करूंगा, मैं एक मीनिंग देने की कोशिश करूंगा मैं। सो दिस इज अ ह्यूमन टेंडेंसी जनरलाइज करने की। सो आई विल से if you stop generalizing your own self with in all these matters, if you stop generalizing the mishappenings you had in life, then you will start becoming more rational. So इसीलिए हमने आज की है बात इमोशनल फर्स्ट एड की। फर्स्ट एड क्या होता है? जो आपके घर में ही है, आपके सामने बॉक्स में रखा हो। सो अगर ये चीज अगर आपके माइंडसेट में हो कि लोनलीनेस एंड रिजेक्शन के लिए भी मेरे पास एक सोल्यूशन है, and that solution is like how to think using the database। हिस्ट्री को लेके मैंने कैसे सोचा, लोगों ने कैसे सोचा, फाइन। सो अगर ये फर्स्ट एड की तरह हमारे फिजिकल फर्स्ट एड के लिए हम ये सब बॉक्स रखते हैं, लेकिन जो मेंटल फर्स्ट एड के लिए these are the areas I think we should start creating our thought patterns in। और यहीं पर जो थेरेपीज होती हैं वो ये होती हैं कि लाइक स्टार्ट like realization that by nature we all are actually social by nature। so अभी भी बहुत सारे साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट हुए हैं, वो यही बताते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स आर एक्चुअली सोशल बीइंग्स। सो अगर हम इस कॉन्सेप्ट पे फोकस करें, what we realize it in a later period of time, whatever technology we acquire, whatever things we do, but we still need and have this need to connect with each other। like पहले अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, हमें एक चीज रियलाइज हो रही है कि वी ऑल आर लाइक रियली सोशल ह्यूमन बीइंग्स। जैसे पहले टेक्नोलॉजी होती थी टेलीफोन्स की, लैंडलाइन फोन्स की एंड ऑल दैट, तो लोग कनेक्ट होते थे आपस में, फाइन। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई तो आपने देखा होगा व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा एंड ऑल दीज थिंग्स, इसके अंदर क्या है, सोशल कनेक्ट इज अ मेजर प्रॉब्लम। सो हमारे को सोशल कनेक्ट करना ही है, फाइन। सो अगर अब डीप डाउन द साइड आप ये सोचोगे कि आप ये सोशल कनेक्ट इतना क्यों बढ़ाते हो अपनी लाइफ में, तो आप देखेंगे कि समवेयर डाउन द लाइन यू फील लाइक आई एम लोनली, सो आई नीड मोर एंड मोर पीपल। सो उससे क्या होता है, व्हाट वी स्टॉप थिंकिंग अबाउट रैशनलाइजिंग अवर ओन इमोशंस। सो हमारा अगर पूरा ध्यान ये रहेगा कि मैं लोगों से, मैक्सिमम लोग मेरे साथ में रहेंगे, जो भीड़ काम करेगी वो मैं काम करूंगा, अगर मेरा पूरा ही ध्यान इसमें रहेगा, फाइन, देन हाउ डू आई डील विद माई ओन अदर इमोशंस। सो दीज आर द कोर एरियाज जिसको अगर हम इफ वी टॉक मोर अबाउट इट, वी रियलाइज मोर अबाउट इट, एंड व्हेन वी रियलाइज मोर अबाउट इट इन प्रैक्टिकल वी विल स्टार्ट यूजिंग इट। क्योंकि सारी चीजें ये नहीं है कि मैं आपको थ्योरीज बता दूं, आपको बस बाकी सारी चीजें बुक्स बता दूं, मैं उससे आपका रियलाइजेशन नहीं होगा, बिकॉज मोर एंड मोर यू पुट योरसेल्फ इनटू दैट एनवायरनमेंट, इसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक इफेक्ट। तो जैसे ही आपका एनवायरनमेंट अपने आप को इस तरह से क्रिएट कर देंगे हम लोग इस टाइप की डिस्कशन में, वैसे ही यू स्टार्ट फोकसिंग एंड देन यूजिंग इट। जैसे एक कॉन्सेप्ट होता है साइकोलॉजी में, वॉन रिस्टॉर्फ इफेक्ट। highlighted material is better remembered. Even for students who want to do good in academics, they need to know brain remembers infinite number of things, but it remembers highlighted things. So
आपने किसी बुक पढ़ी हो, उसके अंदर मार्क किया हो या नोट किया हो, या एक पेज का सेक्शन अलग हो, या माइंड मैप्स आजकल यूज कर रहे हैं स्टूडेंट्स एकेडमिक्स में, नीट के लिए भी आ रहे हैं, फिजिक्स के लिए भी आ रहे हैं, केमिस्ट्री के लिए भी माइंड मैप्स आ रहे हैं आजकल. सो हाईलाइटेड मटेरियल इज बेटर रिमेंबर्ड. सो इसी तरह से वट एवर इमोशनल एरिया, लाइक अभी हमने लोनलीनेस की बात की, उससे पहले हमने रिजेक्शन की बात की, फिर उसके बाद और भी अलग अलग टाइप के एंजाइटी इश्यूज होते हैं. सो अगर हम इन सब चीज़ों को हाईलाइट करेंगे, देन सबकॉन्शियसली हम विल स्टार्ट थिंकिंग ऑन इट, राइट. एंड दिस इज हाउ we use our emotional powers to come up very well in terms of careers and also in our own life. Very true, sir. There is one important question that external factors impacts us more. हमारे internal factors तो हैं ही हैं जो साथ चलते हैं, चाहे फिर हम बोले हमारा एंजाइटी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, डिप्रेशन बहुत जल्दी हो जाता है, ओवरकम नहीं कर पाते हैं, बट उसके लिए भी एक्सटर्नल फैक्टर्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है. हाउ टू शील्ड आवरसेल्व्स फ्रॉम द एक्सटर्नल फैक्टर्स फर्स्ट ऑफ ऑल. इंटरनल सेल्फ तो ऑटोमेटिकली बन ही जाएगा. सो व्हाट टू डू सो दैट वी कुड शील्ड आवरसेल्व्स. राइट. सो एक्सटर्नल फैक्टर्स को शील्ड करने का आई थिंक बेस्ट तरीका ये है टू यूज टू थिंग्स इन लाइफ. साइकोलॉजी एंड फिलॉसफी बोथ आर रिलेटेड, बट यही चीज कई बार हम इसको बहुत जेनेरिक फॉर्म में लेते हैं. जेनेरिक फॉर्म लेने का मतलब ये है कि बाहर की चीजों से यू विल ऑलवेज गेट अफेक्टेड एंड वी आर गेटिंग अफेक्टेड. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक्सटर्नल फैक्टर से अफेक्ट ना हो, वो हमेशा हम अफेक्ट हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे. एंड दैट इज द थिंग विच द मार्केट एम्प्लाइज. जो सेल्स इंडस्ट्री है वो इसी चीज को फोकस करके आपको उन्हीं एक्सटर्नल और मटेरियलिस्टिक फैक्टर्स के साथ कनेक्टेड रखती है. फाइन. सो यहाँ पर मेन सोचने की चीज ये है कि व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव अबाउट लाइफ. आप अपनी लाइफ को कैसे लेते हैं. फाइन. आप अपनी लाइफ को इंपॉर्टेंस कितनी देते हैं. फाइन. सो like rejections, fine, like financial crisis, like enmity with people. So ये सारी चीजें जो हैं, ये एक्सटर्नल चीजें आपको किस तरह से तंग कर रही हैं. अगर आप उसको फोकस ना करके इसको साइड में हटा के पहले आप सोचें कि आपको जब आगे बढ़ना है तो आपको कितनी शांति रिक्वायर्ड है. एंड विच इज द थिंग आई थिंक मच टॉक्ड अबाउट बट लेस रियलाइज्ड, कि व्हाट एक्चुअली you want in life. Either you want actually even if you want money, you want a life to be good. So ultimately your definition of good has to be like how you feel down the line. आप कैसा महसूस करते हैं. Even if I give you loads of things but even then you're not satisfied, इसका मतलब वो बाकी सब चीजें जो है वो देना बेकार रही. So how you feel in your life, that is more important. So कई बार मैं I have tried this thing on my own life also. Like अगर मैं ड्राइव करता हूँ तो मैं कई बार ड्राइव करते करते मैं ये सोचता हूँ कि आज बड़ी शांति से ड्राइव कर रहा हूँ मैं. So then I realize that कि this is what I want actually. So अगर हम हर जगह इस चीज को लगा के चलेंगे तो I feel हमारी एंजाइटी कम होती चली जाएगी. And it did. So मेरी जो ड्राइविंग एंजाइटी थी तो वो अब धीरे धीरे कम हो गई है, बिकॉज मैं रियलाइज करता हूँ there are certain moments in which you have complete peace and freedom, जो कि बाहर के फैक्टर से अफेक्ट नहीं हो सकती और नहीं होनी चाहिए. So your resolution to work for your own self is more important than like thinking on all these things. Yeah. बिल्कुल इसे कहेंगे अनुभूति. एक दिस इज द एप्रोप्रिएट वर्ड कि जब हम ये महसूस कर लेते हैं कि यही एक पल है या एक मोमेंट है, ये एक वो चीज है जो मुझे सुकून देता है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे पार्ट बन जाता है हमारी लाइफ का. सो डॉक्टर ऋषि मिश्रा, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दिस थॉट प्रोवोकिंग सेशन, एंड वी बिलीव दैट ऑल द स्टूडेंट्स हु आर अपियरिंग फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशंस, दिस सेशन वुड बी वन ऑफ द मोस्ट वंडरफul session. Please do watch and do share this lecture with your friends or your brothers and sisters who are appearing for the examination, because this session will help them out in appearing for the examination, and they will be the winners definitely. Thank you, sir. Thank you so much for giving us this session. And friends, we would be uploading this lecture on YouTube for you. Watch this lecture the number of times you wanted. Yes, as I said, share this lecture for the benefit of the people around you, and you can write to us at cecgurukul.live@gmail.com. We would be meeting next Thursday and would be conducting such sessions again and again. Thank you.